السلام علیکم ناظرین کوشر خبرنامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل کنگام شپینس مز یہ رات دوپہرن تمہ سات فوجس تو ملٹنٹن درمیان گولین ہند تبادلہ سپد یل فورسز اہلکاروں طرف علاقہ گیر کرنا آو تت ووت آز دوپہر برہوئی یہ جڑا پند جڑپہ دوران یہ فورسز اہلکار زخمی سپد یم زن علاج معالجہ باپت ہسپتالس مز داخل کرنا آئی تت گولین ہندس تبادلس مز البدر تنظیم ست وابستہ ملٹنٹ تہ فوت سپدمت جڑپہ دوران یہ رہائشی مکان تہ خاکستر سپد تت فوت سپدمتن ملٹنٹن ہند شناخت آصف احمد لون ترک وانگن شپیان تو اویس فاروق چرسو اونت پور سند رنگ کرنے آمد Last night we had started an operation in Karnigam, Shopian on a specific information. During the course of firing, two of our army jawans got injured. They were evacuated to hospital last night. The operation continued throughout the night, and today by late morning, both the militants who were holed up and who were firing at the police party have been neutralized. That is what has been got from the field. Further details and yet to collect. I was two part local of this. boys have been neutralized. Any details about the outfit to which they belong? I'm told they belong to Al-Badr. Al-Badr. So any casualty from this side? No casualty from our side. But Sir, we heard any that there is a injury lot from of the damage. Some sources? houses have been damaged because the bulldozer is also there to clear the garbages from that side. I was part of this function. I have to get details from the field, further details from the field. Maybe that during the course of an encounter, the target house may have been got some damage, and at times the nearby houses also get some damage, but those details are not available What is as the of now. present position? Operation call off or not still going on? I think operation is still on, and it will take some more time for the troops to withdraw from Sir, there. as far as the 2020 is coming to an end, what is your year-ender as the security chief of J&K? See, I would say that police and the security forces along with the army, we've been able to give much better environment to our people of Jammu and Kashmir. Peace is further getting stabilized and the enemies of peace are getting neutralized. People have participated in the DDC elections in a big way without any sense of fear. We haven't seen that kind of enthusiasm among the voters, among the candidates for the last many years. That also shows that that sense of جموں کشمیر انتظامیہ طرف آز جوم تو سرینگرس مز تقریبا سانز کرنا آمت یت مز وزیر اعظم نریندر مودی گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر امت شاہ تو جموں کشمیر ہند لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا علاوہ انتظامیہ کے بہل پائے افسروں لوک سبھا تو راجیہ سبھا ممبروں علاوہ مستحق لوکو شرکت کر تقریب دوران یہ ویڈیو کانفرنس ذریعہ وزیر اعظم نریندر مودین ہیلتھ انشورنس سکیم افتتاح کور تت تمو وونمت زِ امہ سکیم ست وات جموں کشمیر ہندین لوکن سٹھا فائدہ یل زن ات موقع پہ گھرکلی معاملن ہند مرکزی وزیر امت شاہن وون زِ یم وعدہ مرکزی سرکار طرف جموں کشمیر ہندین لوکن ست کرنے آمت تم وعدہ پور کرنے باپت سنجیدہ قدم تلنے یوان تقریب دوران منوج سنہان وونمت زِ مرکزی سرکار طرف یم ذمہ داری تمن پہ عائد کرنے آمژ تم ذمہ داری نبھاؤ باپت جموں کشمیر انتظامیہ طرف دہ رات کام کرنے یوان یت مز واریاہس حدس تام انتظامیہ کامیابی تہ حاصل سپز رجسٹریشن جو ہوگی ان کے پاس ایک اپلیکیشن جائے گی وہ لوگ اس میں جب پہلی بار میں آپ سے ملا تھا تو آپ نے 4-5 باتیں پرمکھ روپ سے مجھ سے کہی تھی. آپ نے کہا تھا کہ ٹرانسپیرنٹ اینڈ گڈ گورننس یہ جموں کشمیر میں استھاپت ہونا چاہیے. آپ نے کہا تھا کہ کرشی اور باغبانی ہارٹیکلچر میں بہت پوٹینشیل ہے ڈیری میں, اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے چنتا ویکت کی تھی کہ بے روزگاری کافی ہے, بے روزگاروں کو روزگار ملے ایسا واتاورن بنانا چاہیے. اور آپ نے یہ بھی کہا تھا
कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर कहीं न कहीं पिछड़ गया है। उसे मुख्य धारा में लाना है और विकास के नए मानदंड भी स्थापित करने। आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपने पीएमडीपी के अंतर्गत जो 55 करोड़ रुपए और विभिन्न परियोजनाएं दी थी कोविड, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में गति ने केवल अपनी रफ्तार नहीं पकड़ी है, बल्कि 20 परियोजनाएं हमने पूरी की हैं और मार्च में 16 परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। जो शेष हैं उसमें से 8 जून में पूरी होगी और 2022 में सभी परियोजनाएं पूर्ण करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों को सुपुर्द कर दी जाए। मानता हूं मित्रों, शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से चुनाव हुआ है और जम्मू कश्मीर के अवाम ने जिस प्रकार से इसके अंदर भारी संख्या में हिस्सा लिया है और बहुत अच्छे तरीके से सबने अपने अपनी मंशा के अनुरूप वोटिंग कर अपने प्रतिनिधि चुने हैं, वो जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा को गांव तक, आपके घर तक पहुंचाने में चमत्कारिक परिवर्तन ये आने वाले 5 सालों में करेंगे। मैं बहुत भरोसे से कह सकता हूं कि 2014 से 2020 का ये 6 साल का कालखंड रहा है, वो जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद, 90 के दशक के बाद शांतिपूर्ण कालखंड के रूप में आने वाले दिनों में जाना जाएगा। ये तीनों उद्देश्यों को हल करने में हमारे एलजी श्री मनोज सिन्हा जी की एक बड़ी भूमिका रही है। मुख्य सचिव जी ने भी पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को इसके साथ जोड़ा है। मैं दोनों को भारत सरकार की ओर से बधाई भी देना चाहता हूं और दोनों का अभिनंदन भी करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो वादा था 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों को, वो कश्मीर की जनता को, उसको पूर्ण करने में बहुत लंबी मजल, बहुत कम समय के अंदर काटने का आप लोगों ने प्रयास किया है और सफल की है। अंत में मैं अटल जी इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात को लेकर के हम सबको आगे के कामों के लिए लगातार दिशा निर्देश देते रहे हैं। इन्हीं 3 मंत्रों को लेकर के आज जम्मू कश्मीर इसी भावना को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस योजना के फायदों पर विस्तार से बात करने से पहले मुझे अवसर मिला है आपके बीच आने का, तो मैं कहना चाहूंगा, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भी अनेक 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 बधाइयां देता हूं। डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव ने एक नया अध्याय लिखा है। मैं इन चुनावों के हर फेज में देख रहा था कि कैसे इतनी सर्दी के बावजूद, कोरोना के बावजूद नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं बूथ पर पहुंचे, घंटों तक कतार में खड़े रहे। जम्मू कश्मीर के हर वोटर के चेहरे पर मुझे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए एक उम्मीद नजर आई, उमंग नजर आई। जम्मू कश्मीर के हर वोटर की आंखों में मैंने अतीत को पीछे छोड़ते हुए बेहतर भविष्य का विश्वास भी देखा। एक समय था हम लोग जम्मू कश्मीर की सरकार का हिस्सा थे, उप मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री थे, लेकिन हमने उस सत्ता सुख को छोड़ दिया था। हम सरकार से बाहर आ गए थे। किस मुद्दे पर आए थे आपको मालूम है ना? हमारा मुद्दा यही था, पंचायतों के चुनाव कराओ, जम्मू कश्मीर के गांव-गांव के नागरिकों को उनका हक दो, उनको उनके गांव का फैसला करने की ताकत दो। इस मुद्दे पर हम सरकार छोड़ करके आपके साथ रास्ते पर आके खड़े हो गए। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस सांझ करना आमुत यथ दौरान पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्लाहन इल्जाम अयद करान वोन डीडीसी इंतखाबन मज कामयाब उम्मीदवार जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल करने बापत मजबूर करने इस जन जमहूरियत बापत अख तशवीशनाक कत।
उमर अब्दुल्लान वोनमुत कामयाब उम्मीदवारन हिंद रिश्तेदार बिला वजह गिरफ्तार करने तो तिहज रिहाई बापत तिमन अपनी पार्टी में शमूलियत करने बापत वन। आज भी वज़ीर आज़म साहब जब एक सेहत को लेके प्रोग्राम का इनॉग्रेशन कर रहे थे तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें डीडीसी इलेक्शन के हवाले से की और कहा कि ये जमहूरियत है और जमहूरियत की जीत हुई है। अगर वाकई जमहूरियत की जीत हुई है तो फिर जमहूरी तरीक़ों से ही अगला कदम जो है लिया जाना चाहिए और अफसोस की बात यह है कि ये नहीं हो रहा है। पता नहीं किन वजहों से हुकूमत के कुछ अफसरों ने किसके कमांड पे ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन नतीजे निकलने के बाद उन्होंने दखल देना शुरू किया है। गिरफ्तारियां, पकड़ दकड़, धमकियां और मकसद सिर्फ यही है कि जिन ज़िलों में पीपल्स अलायंस का, मैं कश्मीर प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, जिन ज़िलों में पकड़ दकड़ के ज़रिए वो रिज़ल्ट को तब्दील कर सकते हैं और डीडीसी चेयरमैन जो है अलायंस को छोड़ के दूसरी पार्टी का बना सकते हैं, वहाँ पे ज़ोर शोर से ये काम चल रहा है। फ़िलहाल शुरुआत उन्होंने शोपियां ज़िले से की है। मेरे दो साथी सीनियर वच्ची के हमारे एक्स MLC शौकत गनाई साहब और शोपियां के हमारे सेगमेंट इंचार्ज शबीर अहमद कुल्ले साहब, वो वहाँ के बार के प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन उनका सबसे अहम रोल जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ पे सीनियर लीडर के हैसियत से है। नतीजों के बाद दोनों को वहाँ से उठाया गया, दोनों को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में लिया गया। अब वो क्या प्रिवेंट कर रहे हैं समझ में नहीं आता, क्योंकि सिवाय डेमोक्रेसी के और किसी चीज़ को प्रिवेंट नहीं किया जा रहा है वहाँ पे। शबीर कुल्ले साहब वो हैं जिनको 5 अगस्त के बाद भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में बंद नहीं किया गया। अगर तब उनको बंद करना ज़रूरी नहीं था तो आज नतीजों के बाद उनको बंद क्यों किया गया वो अब हमें मालूम चल रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक एक करके जो जीते हुए लोग हैं उनको श्रीनगर लाके अपनी पार्टी जो है उसमें ज्वाइन किया जा रहा है। इसमें इंडिपेंडेंट्स भी हैं, इसमें कांग्रेस के भी हैं, PDP के भी हैं और बदकिस्मती से कल हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिंबल पे जो एक लेडी वहाँ जीत के आई, मुमताज़ यास्मीना सॉरी, उनको भी कल ज़बरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल किया गया। और मैं सोच समझ के ये अल्फाज ज़बरदस्ती इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक साथी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने टेलीफोन की रिकॉर्डिंग की है, जिसके बाद सारा बिल्कुल क्लियर ये पता चल जाता है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग हुकूमत और पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और छोड़ने की कीमत, उन लोग जिनको पकड़ा जा रहा है छोड़ने की कीमत ये है कि आप आइए अपनी पार्टी ज्वाइन करिए और उसके बाद इन लोगों को छोड़ा जाएगा। ये जो जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, एक यहाँ खड़े हैं और एक उस औरत का के खावंद हैं।
खावंद के भाई को पकड़ के लिया गया है और खावंद को कहा जा रहा है कि आप अपनी बीवी को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा दो, 3 दिन के अंदर अंदर हम आपके भाई को छोड़ देंगे। वो गई, अपनी पार्टी ने उसको हार पहना दिया और जमहूरियत का एक बार फिर यहाँ पे कत्ल का सिलसिला जो है उसको कर दिया। हालांकि हम समझ नहीं पाते, अगर पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन है, अगर के असेंबली में एंटी डिफेक्शन है, तो पंचायतों में भी है, तो फिर एंटी डिफेक्शन का कानून यहाँ पे भी लगना चाहिए। ये फौरी तौर डिस्क्वालीफाई हो जाए, नए सिरे से इलेक्शन कराएं, हम भी देखते हैं कौन कहाँ खड़ा है। लारू कुलगाम के लूकों तरफ आज महकमे बिजली खिलाफ एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यह दौरान एहतजाज में शामिल लूक महकमे बिजली खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल लूकों तरफ वन आमुत युद्ध इलाकस मज महकम तरफ मीटर नस्ब कर आमुत, ताहम बिजली फीसस मज इजाफ कर यमकिन आम लूक मुश्किल मज हन आई। मुकामी लूकों तरफ मंग कर आमुत नस्ब कर आमुत मीटर गसन हटाने इन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने इन। हमारा मुतालबा यही है, हमारे मीटर जो इन्होंने इंस्टॉल किए हैं वो यहाँ से हटाया जाए। जो फ्लाइट रेट संघर्ष देते हैं वही हम वाले देते हैं, संघर्ष वाले देते हैं, 50 रुपए वाले देते हैं, हमसे 50 रुपया अलावा यहाँ से मीटर हटा। जो बंदे यहाँ रीडिंग उठाने आते हैं वो कैजुअल लेबर होते हैं, वो कैजुअल लेबर होते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि हम रीडिंग कहाँ से उठाए। उनको पिछली रीडिंग पता नहीं होती है कि हमने इस रीडिंग में बिल भेजी है। वो नया बिल नई रीडिंग उठाते हैं, हमें पूरी रीडिंग का बिल आते हैं। देखो मैंने ये बताया 2 साल मेरी रीडिंग टोटल रीडिंग बताई जा रही है 4300 पॉइंट्स, 4300 पॉइंट्स। अगर इसको 3 रुपए के हिसाब से भी ज़रब दिया जाए तो मेरा बनता है 12,000 रुपए। ठीक है, इन 3 बिलों के बगैर मैंने 14,000 रुपए पे किया है। यपर कजगुंड के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद महकमे बिजली तरफ वक्त पे सारफन बिजली बिल फराहम कर यमकिन गरीबी हिंद सोत्र बोन जिंदगी गुजर बसर करने वाले लूकन बिजली फीस अदा करनस मज सठा मुश्किल व्यतरन पेवान। मुकामी लूकों तरफ महकमे बिजली हिंदन जिम्मेदारन मंग कर आमुत बिजली बिल गसन वक्त पे लूकन फराहम कर युद्ध जन लूक बिजली फीस अदा करित हेकन। इस वक्त तो वो एक्स्ट्रा हमारे सिस्टम पे लोड जो है वो एक्स्ट्रा डालते हैं, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम ओवरलोड हो जाता है और हमें एक्स्ट्रा कर्टेलमेंट करनी पड़ती है। मैं आपकी वसादत से लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि लोग हमारे साथ इस वक्त कोऑपरेट करें, क्योंकि जिसका जो भी सैंक्शन लोड है कम से कम अगर वो हर घर अगर वो सैंक्शन लोड हिसाब से वो घर इस्तेमाल करे वो लोड, तो हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। फिर ये मुश्किल जो भी ये प्रॉब्लम है ग्रीवेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं कि लोग तो जलाते हैं क्योंकि हमारे पास इसमें क्लियर प्रूफ है, हमारा मीटर यहाँ लगा है स्टेशन में। अलबत्ता ये जो बिल जनरेशन जो अभी आप कह रहे हैं कि हम 6 को हम बिल जनरेट करते हैं, क्योंकि तब तक हमारी वो ओवरलोडिंग अपडेट करते हैं रिकॉर्ड। उसके बाद 8th और 10th कंज्यूमर एक वो बिल सहूलियत एक एप्लीकेशन है, वहां पे आप कंज्यूमर सहूलियत के लिए वो अपनी बिल वहां देख सकते हैं। पाटवाल तो मोहम्मद बडगाम के लूकों तरफ शिकायत बावान वन आमुद युद्ध मकामी नाल मज गैर कानूनी तौर सेख तो बाजर कर तो मौसम बहारस मज नालस मज आबुक बहाव तेज सपदन सत लूकन हंदिस जरिए जमीन सठा नुकसान सपदन, ताहम इंतजामिया तरफ अत पे रोड लागने बाबत कह कदम तुल आमुद। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मंग कर आमुद अत पे रोड लागनस हवाल गन संजीद कदम तुल जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। वन मंडिल नाल यम कड़ान सिर्फ नम बाजर कन तुलान बाजर तुलान ये बॉर्डर तुलान ये लैंड इरोजन गसान योर वसान मामत, योर वसान पाटवाल, योर वसान गजरगुंड, योर वसान तिलमपुर। यह हालात रड़ गसान 10 बड़ मकान रड़ गसान। नमो मामत क्यों बिचारो कैंचो घरों लोन कोड़मुत पे बनमित जाय पावर यम तामत वालिक बोन। जनाब गए मुतलक हुकामन तहसीलदार बडगाम गए, DC बडगाम गए, SHO साहब गए, तत BMO साहब गए, एप्लीकेशन त्राई
کہان غور کر تیتہ نظر انداز کر حتیٰ کہ ون ووت توت پہ موقع ون تم لائن اگر یوتن ونو نا کنس مار پیٹ. کافی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کافی سختی سے ہم نے اسے امپلیمنٹ بھی کیا ہے, گاڑیاں سیز کی ہیں, FIR لگائے. آج رات کو بھی 1 بجے ہماری ٹیم نے جا کے جگہ چھاپا مارا, ان پر مین ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے, ان کے خلاف FIR لگانے جا رہے ہیں. ہم اس میں اسٹرکٹ تھوڑا رہیں گے, لوگوں سے تھوڑا سا کوآپریشن کی ضرورت ہے اس میں سر, کیونکہ موسٹلی ایلیگل ایکسٹریکشن جو ہے رات کو ہوتی ہے. ہمارے جو چوکیدار ہیں, نمبردار ہیں, ان کو تھوڑا اس میں پازیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا اور ریئل ٹائم میں انفارمیشن دینی پڑے گی. وادی کشیر مز نامسعد حالاتو باوجود یہ نوجوان کھلاڑیوں طرف پنس صلاحیت بھرپور مظاہر کرنے تجہ شمالی کشیر ہندس ٹنگمر علاقہ ست وابستہ سابیہ ناوچہ اکہ کور نیشنل انٹرنیشنل تو مقامی سطح پہ سکنگ ہندن کیاہن مقابل مز حصہ نت پنس صلاحیت بھرپور مظاہر کورمت. یل زن بہترین کارکردگی ہند مظاہر کرنس حوالہ جموں کشمیر سپورٹس کونسل طرف تم شیر کشمیر ایوارڈ ست نوازنہ آئی. یپر سابیہن وونمت تم روزن محنت کران یت زن سہ مقصد پور سپدے یم باپت تمو خواب وچمت. میرا نام سبیہ نبی. ایکچولی میں نے I was only 12 years old when I started this beautiful journey of skiing. تو اس کے بعد میں نے 3 کورسز یوتھ سروس اینڈ اسپورٹس سے کیا. اس کے بعد میں نے بہت سارے ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرنا اسٹارٹ کیا, جس میں میری بہت اچھی پرفارمنس رہی آج تک, جس میں گولڈ رہا, سلور رہا, برونز رہا. دیٹ انکریجڈ می اے لاٹ. سو اس کے بعد میں نے بہت سارے نیشنلز کھیلے. جونیئر نیشنل میں نے 2012 میں کھیلا, جس میں مجھے ڈبل گولڈ رہا. تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ انکریج کیا. تو اس کے بعد میں نے بہت سارے نیشنلز کھیلے. ایون 2018 میں نے انٹرنیشنل کھیلا. سو اس کے بعد میں نے بہت سارے ایونٹ, اس سال فرسٹ ٹائم کھیلو انڈیا ہوا, اس میں ڈبل گولڈ رہا میرا. تو اوور آل پرفارمنس کے بیسس پہ مجھے یہ آج کشمیر کا بہت بڑا ایوارڈ ملا ہے, شیر کشمیر ایوارڈ. تو آئی ایم ریئلی ویری ایکسائٹیڈ. شمالی کشیر ہندس متھل علاقہ ست تعلق تھوان والن لوکن یہ کیاہو رنگو مشکل ویترن پیوان تو لوکو طرف کئی پھر حکامن علاقہ کن زون دنچ مانگ تہ کرنا آئی. تتہ لوکو طرف تمہ سات خوشی ہند اظہار کرنا آمت یل علاقہ مز موبائل ٹاور نصب کرنا آو. مقامی لوکو طرف ونہ آمت یہ موجودہ دورس مز تمن موبائل نیٹ ورکنگ حوالہ کیا مشکل تلن پیوان, تاہم علاقہ مز ٹاور نصب کرنے ست لوکن ہند مشکل کن حدس تام دور سپدمت. بات مچھل کی جائے تو وہ ایک بے سہارا علاقہ ہے, ایک بے بس علاقہ ہے اور ایک دور افتادہ علاقہ ہے. جب وہاں دیکھنے کو ملا کہ موبائل فون چل رہے ہیں, ٹاور چل رہے ہیں, تو ہمیں کافی زیادہ مشکلاتوں کا سامنا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پرابلمز ازالہ ہو گیا ہے. اور اس کے باوجود اگر اور زیادہ پرابلمز دیکھی جائے, بجلی کی جو انسان بنیادی حقوق سے ابھی وہ علاقہ محروم ہے. اگر بات کی جائے بجلی کی یا ہیلتھ کی, وہ ان کا نام و نشان تک نہیں ہے. بجلی کی اگر بات کریں تو کچھ بھی نہیں ہے. بجلی ہے لیکن اسی سال اس کی اناگریشن ہوئی تھی, لیکن کسی کام کی نہیں ہے. 2 دن کے بعد یا 6 دن کے بعد پھر بھی غائب ہو جاتی ہے. وہاں بہت زیادہ مشکلات ہوتے ہیں. وہاں پہ چاہے ہیلتھ کی بات کروں, 9 حلقوں پر ایک علاقہ ہے, 9 حلقوں پر مشتمل ہے علاقہ, اور اس کے اندر ایک ہی ہیلتھ سینٹر ہے. اب دیکھیے کتنی پریشانی ہے وہاں پہ. حال میں برابری ہوئی. موبائل ٹاور لگے, ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے انٹرنیٹ شروع ہوا ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے لیے آسان ہو گئے, اور ہم بھی خوش ہیں, ہم کافی خوش ہیں. ناظرین ات ست ووت خبر نامہ دیو اجازت. خدا سوال.